Hello dear students of class 6th, this is Priyanka Arora welcoming you all to Maths online class. Yes students, so in my last lecture I have given you the explanation of question number 1 to 3 of exercise 5.3 and today in this video you will get the explanation of question number 4 to 10 of exercise 5.3. So students, exercise 5.3 question number 4. Till question number 3 we have already done. So see, question number 4 is a man bought a rope of length 10 मीटर. एक आदमी ने एक रोप मीन्स रस्सी खरीदी जिसकी जो लेंथ थी, लंबाई थी, वो थी 10 मीटर. He cut two pieces, one of length 5.5 मीटर. उस 10 मीटर लेंथ ऑफ रोप में से उसने 2 पीसेस कट किए. जो फर्स्ट पीस था उसकी जो लेंथ थी वो क्या थी 5.5 मीटर and the other length is 3:5 upon 11 meter. So this was the length of first piece and this is the length of second piece 3:5 upon 11 meter. How much of the rope is left? अब हमें बताना है कि उसके पास में कितनी रोप जो है वो लेफ्ट है, कितनी रोप बच गई है इतने पीसेस कट करने के बाद में. So see how you will be doing it. First of all you have to write total length of a rope bought. जो उसने रोप खरीदी थी उसकी total length कितनी थी. So the total length of the rope was 10 meter. So firstly you will be writing it. Then he cut 2 pieces from the rope. उस rope में से उसने 2 pieces cut किए. So the length of first piece cut from the rope is 5.5 meter. So this is the length of first piece of rope that he has cut. Then length of the second piece of rope that he has cut is 3:5 upon 11 meter. So this is the length of second piece of rope. Now length of the rope left. अब कितनी length rope की बच गई है उसके पास में, तो हम क्या करेंगे, इसमें टोटल जो लेंथ है उसमें से हम माइनस करेंगे लेंथ ऑफ पीसेस कट. जितने पीसेस उसने कट किए हैं उसको हम यहाँ पर सबट्रैक्ट करेंगे. ओके, सो सी टोटल लेंथ कितनी थी उसके पास में 10 मीटर. उसमें से हम सबट्रैक्ट करेंगे यानी माइनस करेंगे हम फर्स्ट पीस ऑफ लेंथ को, तो दैट वाज 5:1 अपॉन 2 मीटर एंड सेकेंड पीस ऑफ लेंथ को भी हम सबट्रैक्ट कर देंगे, दैट मीन्स 3:5 upon 11 meter. Okay, so see here you can see the fractions are given in mixed fraction. So first of all we will convert this mixed fraction into improper fraction. So under this 10, इस 10 के नीचे कुछ नंबर नहीं है तो हम यहाँ पर अपॉन लगा के 1 प्लेस्ड कर देंगे. So it will be 10 upon 1 meter minus इसको आप मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए. तो 2 को पहले आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो 2 5 इज 10 और इस 10 में आप इस 1 को प्लस करेंगे तो 10 + 1 इज इक्वल्स टू 11. डिनोमिनेटर में 2 एज इट इज रहेगा. So 11 upon 2 meter minus here also you have to multiply. So 11 into 3 is equals to 33 and 33 plus 5 is equals to 38. So this 38 will come in numerator and in denominator 11 will come as it is. Now we have to take the LCM of the denominator. जब आप denominator का LCM लेंगे तो denominator में आप देखिए 1, 2 और 11 है. तो यहाँ पर 1 को आप मत देखिए, आप 2 और 11 को देखिए. तो 2 और 11 दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं. सो प्राइम नंबर्स का एलसीएम निकालने के लिए हम सिंपली क्या करते हैं, प्राइम नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो यहाँ पर आप 2 और 11 को मल्टीप्लाई करिए. 2 11 सा क्या आ जाएगा 22. सो दैट 22 यू हैव टू राइट इन द डिनोमिनेटर. एलसीएम आप देख सकते हो, एलसीएम आया हमारा 22. तो इस 22 को हमने डिनोमिनेटर में प्लेस कर दिया है. अब 1 बाय 1 हम देखेंगे. 1 की टेबल में 22 कितने टाइम्स आता है, तो 1 की टेबल में 22 आता है 22 टाइम्स. तो हमने ब्रैकेट क्रिएट करा और सबसे पहले हमने लिख दिया 22 multiply by numerator. So the numerator of this fraction is 10, so that 10 will come inside the bracket. Close the bracket and outside the bracket write down unit meter. Then the sign is, after first fraction the sign is minus, so here also we will put minus sign. Then again create one more bracket and see in the table of 2 how many times 22 comes. So in the table of 2 22 comes 11 times. So write down 11 and multiply this 11 by the numerator 11. So 11 multiplied by
11. Again, after the bracket, you have to write down meter. Then put minus sign again, open the bracket. In the table of 11, 22 comes 2 times. So write down 2, multiply by the numerator 38. So write down 38 and again outside the bracket you have to mention meter. Now in the next step we will simply multiply it. So 22 into 10 is equals to 220. किसी भी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करने पर उसके लास्ट में 0 लग जाता है. So 220 मीटर माइनस 11 into 11 is equals to 121 meter minus 38 into 2 is equals to 76 meter. Okay, now simply you have to subtract 121 and 76 from 220 meter. So 220 मीटर में से जब आप 121 और 76 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सिंपली आपके पास में न्यूमरेटर में आ जाएगा 23 और डिनोमिनेटर सेम रहेगा 22. रिमेंबर इट इज कंपल्सरी टू पुट द unit. So the unit is meter, so we will be mentioning here meter. Now it is in improper fraction, so we can calculate our answer in mixed fraction. So convert it into mixed fraction. Mixed fraction में जब आप convert करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1:1/22. कैसे आएगा? 22 की टेबल में 23 से छोटा नंबर क्या आता है? 22. So कितने टाइम्स आता है? 1 टाइम. तो वो 1 आ जाएगा सेंटर में और 23 में से हमने 22 को यूज में लिया तो दैट मीन्स 1 is remaining. That 1 will come in numerator and in denominator 22 will come as it is. And at last you have to mention the unit meter. Okay, so like this we can do question number 4. At last you will write the statement. Therefore 23/22 meter or 1:1/22 meter of the rope is left. Now let us move on to question number 5. 3 bags weigh 2:1/4 kg, 5:2/3 kg and 1:1/10 kg. 3 bags हैं जिनका weight है फर्स्ट बैग का 2:1/4, सेकेंड का 5:2/3 and थर्ड बैग का 1:1/10 kg. What is the total weight of these 3 bags? हमें इन तीनों बैग्स का टोटल वेट बताना है. सो टोटल वर्ड से आपको पता चल गया होगा कि हमें इस क्वेश्चन में एडिशन करना है. सो सी statement wise we will write weight of first bag as it is given 2:1/4 kg. Weight of second bag is 5:2/3 kg and the weight of third bag 1:1/10 kg. टोटल वेट लिखने के लिए हम तीनों वेट्स को लिखकर और उनके बीच में एडिशन का साइन प्लेस कर देंगे. सो सी 2:1/4 kg plus 5:2/3 kg plus 1:1/10 kg. नाउ ये तीनों मिक्स फ्रैक्शन है तो इन मिक्स फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. तो 4 को आप 2 से मल्टीप्लाई करिए, 4 2 ज़ा 8, उसमें आप 1 को ऐड करिए तो 9. तो यहाँ आ जाएगा न्यूमरेटर में 9 और डिनोमिनेटर 4 एज इट इज. सो 9/4 kg. हियर 3 को आप 5 से मल्टीप्लाई करिए तो 3 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 15 और उस 15 में आप 2 को ऐड करिए. सो 15 + 2 इज इक्वल्स टू 17. तो यहाँ आ गया हमारे पास में न्यूमरेटर में 17. देन 10 को आप मल्टीप्लाई करिए 1 से, 10 1 ज़ा 10 एंड प्लस 1. सो 10 + 1 इज इक्वल्स टू 11. सो यहाँ पर आ गया 11 और डिनोमिनेटर सेम रहेंगे, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 10. यहाँ पर आप देखेंगे वापस स्टूडेंट्स के जो डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट है 4 3 और 10. सो अगेन वी हैव टू टेक द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर. सो यहाँ पर आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड में मैंने एलसीएम लिया है 4 3 और 10 का. सो 2 की टेबल से होगा पहले डिविजिबल. सो 2 2 ज़ा 4. ओके, 2 की टेबल में 3 नहीं आता तो 3 एज इट इज आ जाएगा और 2 की टेबल में 10 आता है 5 टाइम्स. सो 2 5 ज़ा 10. अगेन बाय द टेबल ऑफ 2. सो 2 की टेबल में 2 1 टाइम्स तो यहाँ पर आ जाएगा 1 और 3 और 5 एज इट इज आ जाएंगे बिकॉज दे आर नॉट डिविजिबल बाय 2. Now we will do it by the table of 3. So in the table of 3, 3 comes 1 time. तो यहाँ पर भी 1 आ गया और 5 as it is आ जाएगा because 5 is not divisible by 3. Now finally by the table of 5. So in the table of 5, 5 comes 1 time. So finally तीनों 1 हमारे पास में आ गए हैं. So LCM क्या हो जाएगा 2 into 2 into 3 into 5. ये जो बाहर वाले सारे नंबर्स हैं प्राइम नंबर्स इनको मल्टीप्लाई करेंगे. सो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 एंड 12 5 ज़ा इज 60. तो LCM क्या आ गया हमारे पास में 60. इस 60 को हम डिनोमिनेटर में प्लेस कर देंगे एंड वन बाय वन हम चेक करेंगे. फर्स्टली 4 की टेबल में 60 कितने टाइम्स आता है? तो 4 की टेबल में 60 आता है 15 टाइम्स. ओके, उस 15 को हम मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर 9 से. सो 15 मल्टीप्लाई बाय 9
Then in the table of 3, 60 comes 20 times. So 20 will come inside the bracket and then 20 will be multiplied by numerator 17. Then last fraction 10. In the table of 10, 60 comes 6 times. So we will be writing firstly 6 and it will be multiplied by the numerator 11. So here 11 will be written. Now multiply it. 15 nines is equals to 135. Then 20 into 17 is equals to 340 and 6 into 11 is equals to 66. Denominator will remain same 60 and after each number you have to mention the unit kg. Then finally you have to add these three numbers 135 plus 340 plus 66. Do addition. You will get the result as 541 upon 60 kg. And when you will convert it into mixed fraction, so you know 6 nines is 54. So 60 nines is 540. So 9 आ जाएगा हमारे पास में whole number which will be written in the center and 541 में से 540 हमने use में ले लिए, so the remainder is 1, so that 1 will come in the numerator and denominator will remain same as 60. So we can write our answer in both the ways. If you will write in only one way, then also it is correct. Therefore, final statement, the total weight of 3 bags is 541 upon 60 kg. या तो आप ये आंसर लिखिए और you can write 9:1 upon 60 kg is the answer. Okay. So now let us move on to question number 6. It is a tailor stitches a curtain of length 8:1 upon 5 meter. एक टेलर ने एक कर्टेन स्टिच किया है, एक पर्दा स्टिच किया है जिसकी लेंथ कितनी थी 8:1 upon 5 meter. But later he finds that he had to stitch 9:1 upon 7 meter. But बाद में उसको ऐसा रियलाइज हुआ कि उसको 9:1 upon 7 meter का कर्टेन स्टिच करना चाहिए था. So how much more cloth should be added now? तो अब जो भी कर्टेन उसने स्टिच किया है उसके अंदर वो कितना और क्लोथ स्टिच करेगा, ऐड करेगा कि इस सेंटीमीटर का मीटर का कि उसको इस मीटर का इस लेंथ का कर्टेन मिल जाए. ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा इसके लिए. सी लेंथ ऑफ कर्टेन स्टिच्ड बाय अ टेलर. अब उसने कर्टेन की कितनी लेंथ को स्टिच किया था, उसने 8:1 upon 5 मीटर क्लोथ से पहले अपना कर्टेन स्टिच कर दिया था. देन लेंथ ऑफ अ कर्टेन ही एक्चुअली हैड टू स्टिच और उसको एक्चुअली कितना लेंथ का कपड़ा चाहिए था 9:1 upon 7 मीटर लेंथ ऑफ क्लोथ उसको चाहिए था, इतना कर्टेन उसको बनाना था. सो लेंथ ऑफ कर्टेन ही नीड्स मोर, तो उसको और कितना कर्टेन चाहिए, कितना कपड़ा चाहिएगा उसको. सो लेंथ ऑफ क्लोथ ही नीड्स मोर निकालने के लिए आप क्या करोगे, जो 9:1 upon 7 मीटर है उसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे 8:1 upon 5 मीटर को, क्योंकि जब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी पता चलेगा कि उसको एक्चुअली और कितना क्लोथ चाहिए उस कर्टेन को स्टिच करने के लिए. सो सी 9:1 upon 7 will be written firstly, then from it you have to subtract, so in between put minus sign. 8:1 upon 5 meter, इसको हम subtract करेंगे. Again the fraction is given in mixed fraction, so convert it into improper fraction. Simply multiply. 9 sevens is 63 plus 1 in the numerator 64. So 64 will come in the numerator. Denominator 7 will come as it is. In between minus sign. Here 5 into 8 is equals to 40 और 40 में आप numerator 1 को add करिए. So 40 plus 1 is equals to 40. 1 denominator will remain same. Again here students you can see that the denominators are different and the denominators are prime numbers. Denominator prime numbers हैं. So as I told you, अगर प्राइम नंबर्स होते हैं तो प्राइम नंबर्स को हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके हमारा एलसीएम फाइंड आउट कर देते हैं. सो 7 और 5 को आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए. 7 5 35, तो आपका एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर 35. एलसीएम को आप डिनोमिनेटर में प्लेस करिए. नाउ one by one you have to see the table. In the table of 7, 35 comes 5 times, so write down 5. It will be multiplied by the numerator 64. So 5 into 64 will come in one bracket in between minus sign. Then in the table of 5, 35 comes 7 times. So firstly you have to write 7. It will be multiplied by the numerator 41. So 7 into 41. Multiply it and write it in the next step. So 64 into 5 is equals to 320 and 7 into 41 is equals to 287 meter.
देन फाइनली वी हैव टू सब्ट्रैक्ट इट. सो 320 में से जब आप 287 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास में रिजल्ट आ जाएगा 33. सो 33 अपॉन 35. इसको हमें मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की नीड नहीं है क्योंकि जो आंसर कैलकुलेट हुआ है हमको वो है प्रॉपर फ्रैक्शन. तो प्रॉपर फ्रैक्शन कभी भी मिक्स फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट नहीं होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट होता है. तो यहाँ हमारा आंसर आ गया 33 अपॉन 35 मीटर. Therefore, he should add 33 upon 35 meter of more cloth now to stitch the actual length of curtain required. That means जितना भी उसने पहले स्टिच किया था उसके अंदर उसको 33 upon 35 मीटर और कपड़ा ऐड करना पड़ेगा so that जितना एक्चुअल लेंथ का वो कर्टेन चाहता था वो उसको मिल जाएगा. Okay students, so this was all about question number 6. Let us move on to question number 7. A shopkeeper buys 100 kg of rice. एक शॉपकीपर था जिसने 100 kg राइस यानी कि चावल खरीदे. He sells 15:3 upon 4 kg on the first day. उस 100 kg में से इतना क्वांटिटी उसने फर्स्ट डे पर सेल आउट कर दिया. Then 25:1 upon 2 kg on the second day. सेकेंड डे पर उसने 25:1 upon 2 kg सेल किया. हाउ मच ऑफ राइस इज लेफ्ट इन द बैग. अब हमें बताना है जब 2 दिन उसने सेल आउट कर दिया राइस तो अब उसके बैग में कितना क्वांटिटी ऑफ राइस रिमेनिंग है ये हमें फाइंड आउट करना है. सो सी हाउ टू डू इट. टोटल क्वांटिटी ऑफ राइस बॉट बाय शॉपकीपर. शॉपकीपर टोटल कितना राइस परचेज करके आया था 100 kg. क्वांटिटी ऑफ राइस सोल्ड ऑन फर्स्ट डे. फर्स्ट डे पर उसने कितना सेल आउट कर दिया 15:3 upon 4 kg. देन क्वांटिटी ऑफ राइस सोल्ड ऑन सेकेंड डे. सेकेंड डे पर उसने कितना सेल किया 25:1 upon 2 kg. क्वांटिटी ऑफ राइस लेफ्ट. अब उसके पास में कितना क्वांटिटी ऑफ राइस बच गया तो इसके लिए क्या करेंगे क्वांटिटी बॉट जितना उसने खरीदा था उसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्वांटिटी सोल्ड जितना उसने बेच दिया. इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास में फाइनल आंसर आ जाएगा कि उसके बैग में अब कितना क्वांटिटी ऑफ राइस रिमेनिंग है. सो सी कितना खरीदा था उसने 100 kg तो बिगनिंग में आ जाएगा 100 kg माइनस करेंगे 15:3 upon 4 kg माइनस 25:1 upon 2 kg. ये जो दोनों फ्रैक्शंस हैं पीछे की तरफ मिक्स फ्रैक्शन ये है क्वांटिटी ऑफ राइस. दिस इज द क्वांटिटी ऑफ राइस सोल्ड ऑन फर्स्ट डे and this is the quantity of rice he sold on second day. Okay, next step हम क्या करेंगे मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे. सो यहाँ पर देखिए 100 के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो 100 के डिनोमिनेटर में क्या प्लेस कर दिया है 1 सो दैट ये जो 100 है ये भी फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट हो जाए. यहाँ पर हम इसको मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में जब कन्वर्ट करेंगे तो 15 को आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे 15 4 60 60 में 3 को ऐड करोगे तो आ जाएगा 63. डिनोमिनेटर में 4 एज इट इज माइनस यहाँ पे 2 को 25 से मल्टीप्लाई करिए सो 25 2 is 50 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 51. डिनोमिनेटर विल रिमेन सेम एज 2. नाउ अब हम क्या करेंगे डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है तो हम डिनोमिनेटर का लेंगे एलसीएम. एलसीएम लेंगे तब आप देखिए यहाँ पर 4 इज डिविजिबल बाय 2. जो 4 है वो 2 से डिविजिबल है. तो मैंने आपको बताया था जब हमने इसके प्रीवियस क्वेश्चंस करे थे कि अगर कोई भी डिनोमिनेटर डिविजिबल है दूसरे डिनोमिनेटर से तो जो बिगर नंबर होता है वही एलसीएम होता है. तो यहाँ पर 4 जो है वो 2 से डिविजिबल है तो बिगर क्या है 2 और 4 में से 4 सो एलसीएम यहाँ पर क्या आ जाएगा 4. आपको एलसीएम कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है आप डायरेक्ट ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं. नाउ सी one by one we have to see the table of the denominator. So in the table of 1 4 comes 4 times. So firstly write down 4 multiply by the numerator 100. So 4 multiply by 100. Then in the table of 4 4 comes 1 time. So write down 1 multiply by the numerator 63. Then in the third bracket in the table of 2 4 comes 2 times. So write down 2 and multiply by the numerator 51. Okay. And in between minus sign will come because here after 100 kg minus sign is there. So here also minus sign will come and after 63 upon 4 kg minus sign is there. So here also minus sign will come. Now in next step you have to simply do the
multiplication. So 4 into 100 is equals to 400, 63 into 1 is equals to 63 and 51 into 2 is equals to 102. अब आप माइनस करिए, सब्ट्रैक्ट करिए, 400 में से पहले 63 को माइनस करिए और जो रिजल्ट आए उसमें से आप 102 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए. सो फाइनली आपके पास में आंसर आ जाएगा न्यूमरेटर में 235 सब्ट्रैक्शन करने के बाद में. सो सब्ट्रैक्शन यू विल डू yourself and in denominator 4 will come. Now if we have to convert it into mixed fraction because it is given in improper fraction. So in the table of 4 the number smaller than 235 will be 232 and it comes 58 times. So 58 will come in the numerator and 3 is the remainder, so that 3 will come in the numerator and in denominator 4 will come as it is. So 58 is to 3 upon 4 kg. So therefore 235 upon 4 kg or 58 is to 3 upon 4 kg of rice is left in the bag. So इतना जो राइस था वो उसके पास में बच गया 2 दिन सेल आउट करने के बाद में. Okay students? So this was question number 7th. Now let us move on to question number 8. It is Rita buys a ribbon of length 5:1 upon 3 centimeter. रीटा ने इस लेंथ की रिबन को परचेज किया. मीना बाइज अ रिबन ऑफ लेंथ 8:1 अपॉन 7 सेंटीमीटर और मीना ने जो रिबन परचेज करी उसकी लेंथ यहाँ पर गिवन है. हु हैज लॉन्गर रिबन. अब हमें बताना है दोनों में से किसके पास में लंबी रिबन है एंड बाय हाउ मच, और कितनी लंबी है ये भी बताना है. एंड व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द टू रिबन्स, और दोनों रिबन्स की टोटल लेंथ क्या है ये भी हमें फाइंड आउट करना है. So see how we have to begin it. Length of the ribbon Rita bought. Rita ने जो रिबन खरीदी उसकी लेंथ है 5:1 upon 3 मीटर सेंटीमीटर. लेंथ ऑफ द रिबन मीना बॉट, और मीना ने जो रिबन परचेज करी उसकी लेंथ है 8:1 upon 7 सेंटीमीटर. ओके, अब पूछा है कि किसके पास ज्यादा रिबन है. तो किसके पास ज्यादा रिबन है ये फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले दोनों में कंपैरिजन करना होगा. रीटा और मीना के पास में जितनी भी लेंथ ऑफ रिबन है उसके बीच में हम करेंगे कंपैरिजन. कंपैरिजन करने के लिए आप एक तरफ लिख दीजिए रीटा और दूसरी तरफ आप लिख दीजिए मीना, और रीटा के नेम के नीचे हम मेंशन कर देंगे उसकी जो रिबन परचेज उसने की है उसका मेजरमेंट. सो 5:1 अपॉन 3 सेंटीमीटर जो लेंथ थी वो रीटा ने परचेज करी थी एंड 8:1 अपॉन 7 सेंटीमीटर लेंथ की रिबन मीना ने परचेज करी थी. अब इस मिक्स फ्रैक्शन को पहले आप कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में. सो 3 को 5 से मल्टीप्लाई करिए. 3 5 15 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 16. डिनोमिनेटर विल रिमेन सेम एज 3 and 7 into 8 is equals to 56 plus 1 is equals to 57 and in denominator 7 will come as it is. Since the denominators are different, क्योंकि denominator different है तो हम comparison direct नहीं कर सकते हैं. हमें क्या करना होगा, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा. क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए आप 16 को मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर दैट मीन्स 7 से, और 3 को आप मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट फ्रैक्शन सेकेंड फ्रैक्शन के न्यूमरेटर 57 से. सो सी इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में 16 को हमने मल्टीप्लाई करा 7 से और राइट हैंड साइड में 3 को हमने मल्टीप्लाई करा 57 से. सो 16 7 का होता है 112. यूनिट लगाना कंपलसरी है सेंटीमीटर एंड 57 3 होता है 171. सो 112 और 171 से ग्रेटर क्या हो गया 171. 171 ग्रेटर है और 171 के ऊपर जो फ्रैक्शन है वो क्या है 57/7 और 57/7 जो फ्रैक्शन है वो किसका है, वो फ्रैक्शन है मीना का. ओके, सो दैट मीन्स किसके पास में ज्यादा लेंथ ऑफ रिबन है, ऑब्वियसली मीना हैज लॉन्गर रिबन. तो यहाँ पर फर्स्ट आंसर आ गया हमारे पास में कि मीना के पास में ज्यादा रिबन है. अब ये पूछा गया था कितनी ज्यादा रिबन है मीना के पास में. सो ऑब्वियसली हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा. दैट मीन्स मीना की लेंथ ऑफ रिबन में से रीटा की लेंथ ऑफ रिबन को सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो मीना की लेंथ ऑफ रिबन थी 57/7 सेंटीमीटर. यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किया था वही ले लेंगे डायरेक्ट. आप देखिए जो कन्वर्ट करके आया था 57/7 वही हमने यहाँ पर यूज में लिया है. और रीटा के पास में कितनी थी 16/3 कन्वर्ट करने के बाद में, तो यही 16/3 हमने
नीचे यहाँ पर यूज में लिया है। ओके, नाउ सी, अब हम इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे। सो सब्ट्रैक्शन करने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए डिनोमिनेटर के अंदर जो वैल्यूज हैं 7 और 3 दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं, राइट। सो प्राइम नंबर्स का एलसीएम निकालने के लिए जैसा मैंने आपको बताया, प्राइम नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे। 7 और 3 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आंसर 21। नाउ सी, in the table of 7 21 comes 3 times, so write down 3. It will be multiplied by the numerator 57, so write down 57. Outside the bracket you have to mention centimeter. Minus, in the table of 3 21 comes 7 times, multiply by 16, and outside the bracket centimeter. Then multiply it, 57 into 3 is equals to 171 centimeter, and 16 into 7 is equals to 112 सेंटीमीटर। नाउ सिंपली सब्ट्रैक्ट इट। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास में न्यूमरेटर में 59 और डिनोमिनेटर सेम रहेगा 21। और जब आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास में आ जाएगा 21 2 times is equals to 42, and 59 minus 42 is equals to 17. So remainder बच जाएगा 17, that will come in the numerator, and denominator 21 as it is. So 2 is to 17 upon 21 is the answer in mixed fraction. Thus Meena has 59 is upon 21 centimeter or 2 is to 17 upon 21 centimeter longer ribbon than Rita. तो मीना के पास में इतनी रिबन ज्यादा है एज कंपेयर टू रीटा। अब ये सेकंड आंसर आया इस क्वेश्चन का। थर्ड पार्ट भी है इस क्वेश्चन में, पूछा गया है व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ बोथ रिबन, दोनों के पास में मिलाकर कितनी रिबन है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो दोनों के फ्रैक्शन ऑफ लेंथ है रिबन की उन दोनों को हम ऐड कर देंगे। तो 57 अपॉन 7 सेंटीमीटर प्लस 16 अपॉन 3 सेंटीमीटर, इन दोनों को हम ऐड करेंगे। अगेन डिनोमिनेटर्स आर द प्राइम नंबर्स, सो मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। 7 into 3 is equals to 21. So हमारा LCM आ गया 21. Now in the table of 7 21 comes 3 times, so write down 3, multiply by the numerator 57. And here in the table of 3 21 comes 7 times, so write down 7, multiply by the numerator 16. Okay, next step, just multiply. 57 into 3 is equals to 171 centimeter, and 16 into 7 is equals to 112 centimeter. Now simply add it. 171 और 112 को हम जब ऐड करेंगे तो हमारे पास में आंसर आ जाएगा 283 सेंटीमीटर। डिनोमिनेटर विल रिमेन सेम एज 21। और जब आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास में आंसर आ जाएगा 13:10 अपॉन 21। 21 को जब आप 13 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास में आ जाएगा 273, विच विल बी नियरेस्ट टू 283, एंड 283 में से जब 273 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 10। वो 10 जो है वो आ जाएगा न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर सेम रहेगा 21। Thus the total length of two ribbon, दोनों रिबन्स की लेंथ मिला के कितनी हो गई 283 अपॉन 21 सेंटीमीटर, और मिक्स फ्रैक्शन में अगर आप देखेंगे तो हो जाएगा 13:10 अपॉन 21 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, सो 3 पार्ट्स वर देयर इन दिस क्वेश्चन, 3 पार्ट्स थे यहाँ पर। सबसे पहले पार्ट में हमें करना था कंपैरिजन, दोनों में से किसके पास में ज्यादा रिबन थी, तो मीना के पास में ज्यादा रिबन थी। अब कितनी ज्यादा थी तो उसके लिए हमने क्या करा, सब्ट्रैक्शन। मीना के पास में जितनी भी लेंथ ऑफ रिबन थी उसमें से हमने रीटा के पास में जितनी लेंथ ऑफ रिबन थी उसको सब्ट्रैक्ट करके आंसर फाइंड आउट करा। और थर्ड में हमसे पूछा गया था टोटल लेंथ ऑफ रिबन, दोनों के पास में मिला के कितनी रिबन है, तो उसके लिए हमने क्या किया था, दोनों फ्रैक्शंस को ऐड कर दिया था। नाउ विद दिस वी आर मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9। इट इज एज अ पार्ट ऑफ अ 10:1/2 किलोमीटर लॉन्ग मैराथन रेस। एक मैराथन रेस थी और टोटल जो डिस्टेंस कवर करना था वो था 10.5 किलोमीटर। 5:2/3 किलोमीटर वॉज टू बी कवर्ड बाय साइकिल्स। उस टोटल डिस्टेंस में से 5:2/3 किलोमीटर कवर किया गया था साइकिल से। 1:7/11 किलोमीटर कवर किया गया था बोट से। ओके, बोट्स के थ्रू कवर किया था। एंड रेस्ट ऑन फुट, और बाकी का जो बचा हुआ डिस्टेंस था उसको चल के कवर किया गया था। ओके,
सो फाइंड आउट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द एथलीट्स ऑन फुट। तो हमें ये बताना है कि जो एथलीट्स थे जिन्होंने इस मैराथन में पार्टिसिपेट किया था, कितना डिस्टेंस उन्होंने चल के, दैट मीन्स अपने पैरों से चल के उन्होंने कवर किया था। सो दिस वी हैव टू डू एज टोटल डिस्टेंस टू बी कवर्ड इन द मैराथन रेस। मैराथन रेस में टोटल 10:1/2 किलोमीटर का जो डिस्टेंस था वो कवर करना था। देन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द एथलीट्स। अब एथलीट्स ने क्या करा था, साइकिल्स के थ्रू उन्होंने 5:2/3 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया था। बोट्स के थ्रू उन्होंने 1:7/11 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया था। अब हमें निकालना क्या है, बाय फुट, दैट मीन्स चल के उन्होंने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो टोटल डिस्टेंस है उसमें से हम क्या करेंगे, डिस्टेंस कवर्ड बाय साइकिल, जो साइकिल पे कवर किया था डिस्टेंस, और जो बोट्स पे कवर किया था डिस्टेंस, उसको हम सबट्रैक्ट कर लेंगे। दैट मीन्स टोटल डिस्टेंस में से माइनस कर लेंगे। तो जब आप इसको टोटल डिस्टेंस में से माइनस कर लोगे तो आपको ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा कि बाय फुट चल के उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है। सो सी टोटल डिस्टेंस कितना था मैराथन का, 10:1/2 किलोमीटर। इसमें से हम सबट्रैक्ट करेंगे 5:2/3 किलोमीटर को और 1:7/11 किलोमीटर को, इसको हमें सबट्रैक्ट करना है। So again all the three fractions are given in mixed fractions. So first of all convert it into improper fraction. So 2 को 10 से मल्टीप्लाई करिए, 2 10s is 20, 20 में आप 1 को प्लस करिए, so 20 plus 1 is equals to 21. डिनोमिनेटर में 2 as it is आ जाएगा। यहाँ पर 3 को 5 से मल्टीप्लाई करिए, 3 5 are 15, 15 में आप 2 को ऐड करिए, so 15 plus 2 is equals to 17. डिनोमिनेटर में 3 as it is. 11 into 1 in the third fraction, 11 ones are 11 plus 7 is equals to 18 and denominator में 11 as it is आएगा। Now since the denominators are different as 2, 3 and 11, so we will take the LCM of these denominator and which I have taken here on left hand side. So 2, 3 और 11 का जब आप LCM लेंगे, पहले 2 से लेंगे, 2 ones are 2, 3 और 11 as it is। अब आप 3 से लेंगे, 3 ones are 3, 11 as it is, and now finally you will take it by 11. So 11 ones are 11. मल्टीप्लाई करिए इन तीनों को, so 2 3s are 6 and 6 into 11 is equals to 66. That means हमारा जो LCM है वो आ गया है हमारे पास में 66। तो ये जो 66 है हम लिख देंगे डिनोमिनेटर में और 1 by 1 हम ब्रैकेट बनाकर सॉल्व करेंगे। 2 की टेबल में 66 आता है 33 टाइम्स, तो पहले हम लिखेंगे 33, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर 21 से और ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा किलोमीटर, माइनस 3 की टेबल में 66 आता है 22 टाइम्स, so write down 22 multiply by the numerator 17. Okay, then close the bracket, after the bracket write down kilometer. Again frame one more bracket, in the table of 11 66 comes 6 times, so write down 6 and this 6 will be multiplied by 18. Okay, now simply multiply 33 को 21 से multiply करिए तो क्या आ जाएगा 693, माइनस का साइन बीच में, 22 को 17 से माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 374 किलोमीटर एंड 6 को जब आप 18 से मल्टीप्लाई करेंगे सो 18 6 इज इक्वल्स टू 108 किलोमीटर। ओके, अब आप सिंपली सब्ट्रैक्ट करिए। सो 693 में से पहले आप 374 को सब्ट्रैक्ट करिए और फिर जो भी रिजल्ट आए उसमें से आप 108 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। नहीं तो एक और मेथड से आप कर सकते हो, यहाँ पर ये दोनों जो नंबर्स हैं ये माइनस के हैं, तो माइनस माइनस आपको पता है माइनस माइनस प्लस होता है, बट साइन माइनस का आता है। तो पहले हम इन दोनों को प्लस कर सकते हैं। 374 और 108 को आप जब प्लस करोगे तो आपके पास में आंसर आ जाएगा 482 किलोमीटर, बट साइन माइनस का ही आएगा। ओके, अगर ये मेथड आप फॉलो नहीं करना चाहते हैं तो सिंपली जैसा मैंने बताया 693 में से पहले 374 को सब्ट्रैक्ट करिए और जो भी रिजल्ट आए उसमें से आप 108 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। दोनों ही तरीके से आपका आंसर करेक्ट आएगा। फाइनली जब आप इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास में न्यूमरेटर में आ जाएगा 211 एंड डिनोमिनेटर विल रिमेन 66 ओनली। सो 211 अपॉन 66 किलोमीटर, और अगर आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 3:13 अपॉन 66 किलोमीटर। ओके, जस्ट डिवाइड करिए 211 को 66 से, so you will get this answer. Whatever is the quotient will be the whole number, remainder will be the
numerator and the number with which you are dividing will be the denominator. So like this you can calculate the mixed fraction. Therefore the athlete covered, that means athlete ने इतना डिस्टेंस 211/66 किलोमीटर, और अगर आप मिक्स फ्रैक्शन में देखें सो 3:13/66 किलोमीटर जो डिस्टेंस था वो उसने चल के कवर किया बाय फुट. ओके, नाउ दैट वाज क्वेश्चन नंबर 9 एंड फाइनली वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 10. इट इज a circular figure is divided into triangular part. एक circular figure था जिसको triangular parts के अंदर डिवाइड किया था, among which 4/27 parts are colored. उस सर्कुलर फिगर में से टोटल 4/27 को कलर किया गया था. तो हाउ मेनी पार्ट्स आर स्टिल टू बी कलर्ड? अब उसमें से कितने पार्ट्स को अभी भी कलर करना बाकी था? ओके, दिस इज द क्वेश्चन. सी, अ सर्कुलर फिगर इज डिवाइडेड इनटू ट्रायंगुलर पार्ट. पहले ये बोला गया है कि एक सर्कुलर फिगर है. यहाँ पर वर्ड देखिए आप, मीन्स 1. एक सर्कुलर फिगर था जिसको ट्रायंगुलर पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया, उसके अंदर ट्रायंगल्स बना बना के उसको डिवाइड किया है. अब फ्रैक्शंस ऑफ कलर्ड पार्ट, उसमें से कलर्ड कितने के ऊपर करा? 4 पार्ट्स के ऊपर कलर किया, और डिनोमिनेटर में देखिए क्या है? 27. दैट मीन्स ये आपको क्लियर हो गया है कि टोटल कितने पार्ट्स थे उसके अंदर? 27 पार्ट्स थे. 27 में से 4 के ऊपर कलर किया गया. सो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स, टोटल कितने पार्ट्स थे? जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पर वर्ड क्या है? और मीन्स 1. सो टोटल क्या है? 1. या तो आप लिखिए टोटल 1. 1 को अगर हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो हम कैसे लिख सकते हैं? 1/1. ओके, ये भी आप यूज में ले सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली लिख सकते हो 27 पार्ट्स थी, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया डिनोमिनेटर में क्या है? 27. सो 27 में से अगर 4 पार्ट्स कलर्ड थे तो टोटल पार्ट्स कितने होंगे? ऑब्वियसली 27. तो हम इसको 27/27 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये कैंसिल अगर आप इसको करोगे, दोनों अगर कैंसिल भी हो जाते हैं तो कैंसिल होके क्या आ जाएगा? न्यूमरेटर में भी आ जाएगा 1 और डिनोमिनेटर में भी क्या आ जाएगा? 1. ओके, तो आप चाहें तो आप 27/27 भी लिख सकते हो, नहीं तो आप 1 या 1/1 जो भी चाहें आप लिख सकते हो. सो फ्रैक्शन ऑफ अनकलर्ड पार्ट्स. कलर्ड पार्ट्स हमें पता है 4/27 है, हमें क्या निकालना है? अनकलर्ड पार्ट्स. कितने पार्ट्स पे कलर नहीं है? तो हम क्या करेंगे? टोटल पार्ट्स में से कलर्ड पार्ट्स को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने अनकलर्ड है. तो यहाँ पर टोटल पार्ट्स कितने थे? 1/1. इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, दैट मीन्स माइनस कर देंगे कलर्ड, दैट मीन्स 4/27 को हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे. सो डिनोमिनेटर में 1 और 27 है, एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा? 27. नाउ 1 की टेबल में 27 आता है 27 टाइम्स, माइनस 27 की टेबल में 27 आता है 1 टाइम. 1 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4. नाउ 27 में से आप 4 को सब्ट्रैक्ट करिए, आ जाएगा आपके पास में 23/27. अब क्योंकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसको हम आगे सॉल्व नहीं करेंगे, ये यहीं पर ओवर हो जाएगा. सो 23/27 पार्ट्स आर स्टिल टू बी कलर्ड, यानी कि इतने पार्ट्स के ऊपर अभी और कलर करना रिमेनिंग है. 23/27. सो here I have explained you the remaining questions of exercise 5.3, that means question number 4 to question number 10. All the word problems I have explained you here. If you find doubt in any of the word problem, then you can re-watch the explanation of that particular problem. Okay students? So with this, I have given you the explanation of question number 4 to question number 10 of exercise 5.3, chapter number 5, fractions. Okay, and we have finished with this chapter number 5 also. Now in my next lecture I will be starting new chapter, that is chapter number 6, decimals. Fine, till then you complete this work in your notebook and I will meet you back in the next online class. So please take good care of yourself. Thank you so much.